اللہ کبھی بھی اس شخص کی نیکی ضائع نہیں کرے گا جو اللہ کے اوپر صدقے دل کے ساتھ ایمان لے کر آئے گا۔ اب دیکھیے، اگر وہ حالت کفر میں بھی تھے اور وہ اللہ کے اوپر یقین لے آئے، ایمان لے آئے، تب بھی اللہ رب العزت نے ان کی پرانی ساری نیکیوں کو پرانی نیکیوں کو، یعنی اچھا بھی کام کیا ہوگا تو اس کو قبول کر لیا، اور جو گناہ کے کام کیے ہوں گے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ اللہ رب العزت ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 115 کو دیکھتے ہیں۔ وما، اور جو، یفعلوا، وہ کریں گے، من خیرن، کوئی بھلائی کا کام، فلن، تو ہرگز نہیں، یکفروہ، ان کی ناقدری کی جائے گی، یا اس کی ناقدری کی جائے گی اس کی، واللہ، اور اللہ تعالی، علیم، خوب جاننے والا ہے، بالمتقین، متقی لوگوں کو، اور بھلائی میں سے جو بھی وہ کریں گے اس کی ناقدری نہیں، ہرگز نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو واو حرف عطف ہے، اور ما یہاں پر شرطیہ ہے۔ ماں شرطیہ کی علامت آگے مضارع مجزوم نظر آ رہا ہے، تو یہاں پہ ماں شرطیہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مجزوم ہو گیا حرف شرط کی وجہ سے۔ اب جو بھی وہ کریں گے بھلائی کے کاموں میں سے، یعنی کہ اللہ رب العزت شرط کے ساتھ بتا رہے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان لے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر دی، اللہ کی کتاب کی تصدیق کر دی، تو اللہ نے ان کو ڈکلیئر کر دیا کہ وہ صالحین ہیں۔ ٹھیک ہے، اب وہ جو بھی بھلائی کا کام کریں گے، وما یفعلوا، اب وہ جو بھی کریں گے، اصل میں کیا تھا یہ یفعلون، جب کوئی حرف شرط آتا ہے نا، یہ آ گیا ما شرطیہ، اس ما شرطیہ نے کیا کیا، مضارع کو مجزوم کر دیا، تو نون اعرابی گر گیا۔ اب نون اعرابی گر گیا تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل مضارع جو ہے نا، یہ اس حرف شرط کی وجہ سے مجزوم ہوا ہے۔ فا عین لام اس کا روٹ ورڈ ہے، من خیرن مرکب جاری کا پیٹرن، یفعلوا فعل کے متعلق ہو جائے گا، فعل فاعل، اور متعلق جملہ فعلیہ شرطیہ، فلن، فا جواب شرط، لن، ہرگز نہیں، لن مضارع کو نفی کے معنوں میں لے جاتا ہے، اور بامعنی مستقبل کے، میکسیمم یہ مستقبل کے معنوں میں آتا ہے، تو ہرگز نہیں، یکفرو، لن جو ہے ناسبہ بھی ہے، لن ناسبہ ہے، یکفرو، یہ کیا تھا، یکفرونا، یہ فعل مضارع مجہول ہے اور منصوب بھی ہے، مجہول ہے، نہ قدری کی جائے گی، فعل مضارع مجہول ہے، منصوب حالت میں ہے، نون رابی ڈراپ ہو چکا ہے، اور ہو اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر جڑ کر آئی ہے، کاف فا را اس کا روٹ ورڈ ہے، ان کی ناقدری کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، واللہ، ہاں تو یہ فعل فاعل مفعول ہو گیا، اور یہ لن ناسبہ ہو گیا، اور جواب شرط جملہ شرطیہ مکمل ہو گیا، شرط اور جواب شرط کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ۔ واللہ، واو حرف عطف ہے، اللہ مبتدا ہے، مرفوع اسم ہے اور معرفہ بھی ہے، علیم نکرہ اسم ہے اور مرفوع ہے، اس کی خبر آ گیا، مبتدا اپنے خبر، بالمتقین متعلق، بی حرف جار، المتقین مجرور ہو گیا، چونکہ آپ دیکھیے اس جملے میں مبتدا موجود ہے، خبر بھی موجود ہے، تو پھر ہم مرکب جاری کو اس کی خبر نہیں بنا سکتے، کیونکہ اصلی خبر موجود ہے۔ مرکب جاری کب خبر بنتا ہے، جب اصل خبر موجود نہ ہو، ہے نا، جب اصل خبر نہیں ہوگی تبھی تو اس کی کوئی جگہ لے گا، اگر اب کوئی اصل آدمی موجود ہو تو اس کی کوئی جگہ تو نہیں نہ لیتا، تو جب مثال کے طور پہ میں آپ کی کلاس لے رہی ہوں، میں آپ کی ٹیچر ہوں، تو میں اس ٹائم پر موجود ہوں، تو پھر کوئی اور تو ٹیچر بن کے آپ کو نہیں پڑھائے گا، لیکن اگر میں نہیں ہوں اور پھر میری ڈیوٹی کوئی اور دے سکتا ہے، تو اس ٹائم پر وہ میرے سٹیٹس پہ ہی ہوگا، وہی آپ کا ٹیچر ہوگا۔ تو سیم، جب مبتدا ہوگا اور اصل خبر موجود نہیں ہوگی تو مرکب جاری خبر بن جائے گا قائم مقام، لیکن اگر اصل خبر موجود ہو تو پھر وہ متعلق ہی رہے گا، تو مبتدا اپنی خبر اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 116،
इन्ना बेशक बिला शुबा यकीनन अल्लादीना जिन लोगों ने कफरू कुफर किया लन हरगिज नहीं तोनिया काम आएंगे उनके अनहुम उनसे अमवालुहुम उनके माल वला और ना ही औलादुहुम उनकी औलाद मिन अल्लाही अल्लाह ताला से शैअन कुछ भी। यकीनन जिन लोगों ने कुफर किया उनके माल और उनकी औलाद अल्लाह ताला के मुकाबले में उनके हरगिज कुछ काम नहीं आएगी। व उलाइका और यही लोग अस्हाबुन नारी आग वाले हैं। हम वो सब फीहा इसमें खालिदूना हमेशा रहने वाले हैं। अस्तगफिरुल्लाह। यानी कि जिन लोगों ने अपने माल को अपनी औलाद को अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकाबले में अहमियत दे दी, अपना इलाह बना लिया ना। हम इस तरह करते हैं, हम लाशऊरी तौर पर बहुत सारे जगह पे ये शिर्क कर जाते हैं कि बाज औकात अपनी औलाद को अल्लाह रब्बुल इज्जत के क्या होता है, इला बनाने का मतलब ये होता है कि मुकद्दम इतना ज्यादा कर देना, अहमियत इतनी ज्यादा दे देना कि हमें फिर कुछ भी नजर ना आए, हमें अल्लाह भी नजर ना आए उनके आगे, अपनी औलाद या अपने माल के आगे। तो क्या है फिर उनका ठिकाना? दोजख है, आग वाले हैं, और वो हमेशा इसमें रहेंगे। इन्ना हरफ नासबा मुशब्बा बिल फेल भी है, हरफ तहकीक भी है, और ताकीद के लिए भी आता है, और अपने बाद आने वाले इसम को मंसूब भी करता है। तो अल्लाज़ीना आगे मौसूल है, जमा है, और मरफू है, मारफा है, मबनी है, और कफारू इसका सिला है। तो मौसूल अपने सिला के साथ मिलके इन्ना का इसम बन गया, इस्मो इन्ना। इस्मो इन्ना क्या है? जिन लोगों ने कुफर किया, यानी कि वो लोग हैं जो मुब्तदा होने की खासियत रखते हैं, यानी वो कोई काम कर रहे होते हैं। ठीक है ना, मुब्तदा वही होता है ना जो काम कर रहा होता है। जुमला फेलिया का फाइल, जुमला इस्मिया का मुब्तदा, इन्ना का इसम होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अल्लादीना का फरू मौसूल सिला मिलके इस्मु इन्ना बन गए। अब खबरू इन्ना जो है वो जुमले की शक्ल में है। इसको आप देख लीजिए। लन हरगिज नहीं, लन नासबा भी होता है, और लन जो है मुस्तकबिल के मानों में लेकर आता है। नफी जहद बलम, यानी कि अब नफी के मायने मुजारे में आएंगे, मुस्तकबिल के मायनों में भी आएगा, और मंसूब भी होगा। तो तोनिया हरगिज काम नहीं आएगा, ये लन ने हरगिज का माफूम दिया है, हरगिज नहीं। तोनिया काम आएंगे, गाइन नून या, और मंसूब हुआ फेल मुजारे के ये लन की वजह से मंसूब हो गया। तोनिया फेल मुजारा वाहिद मुन्नस गायब का सीगा है। अनहुम उनसे, अन हरफे जार, हम जमीर मजरूर, मुरक्कब जारी का पैटर्न हो गया, मुरक्कब जारी मुतआलिक बनेगा। ठीक है। अब देखिए साजा स्पेशली अगर है तो, कि जुमला फेलिया में भी मुतालिक होता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ गया है ना उनसे। तो ये जो भी एक्स्ट्रा होगा ना, फेल नहीं होगा, फाइल नहीं होगा, मफूल नहीं होगा, तो वो मुतालिक के जरिए जुमले का हिस्सा बनेगा। अम वालुहुम फाइल आ गया, मुरक्कब इजाफी की शक्ल में फेल का फाइल आ गया। देखिए तोनिया फेल है वाहिद मुन्नस गायब का, जिसका फाइल अंदर भी हो सकता है, बाहिर भी हो सकता है। तो बाहिर जब मरफू इसम आया हमारे पास, अम वालुहुम मुरक्कब इजाफी मरफू आ गया, तो एक ये बनेगा इसका फाइल, वला औलादुहुम, और दूसरा फाइल इसका औलादुहुम बनेगा, ये भी मुरक्कब इजाफी है। वला वाव हरफ आतफ है, ला लाए नाफिया है। तो ये वाव अतफ के जरिए अम वालुहुम वला औलादुहुम ये दोनों इसके फाइल बन जाएंगे। मिन अल्लाही शैअन। अब ये मिन अल्लाही जो है ना अल्लाह ताला से, इसको भी अगर आप देखेंगे तो मुरक्कब जारी का ही पैटर्न आ रहा है, ये भी मुरक्कबे जारी, ये भी मुतालिक बनाएंगे, और शैअन मफऊल बन रहा है। ठीक है। अब जब हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे हमें बताया क्या गया है कि हरगिज काम जिन लोगों ने कुफर कर लिया ना, हरगिज उनका माल और उनकी औलाद उनके अल्लाह ताला के मुकाबले में कोई काम नहीं आएंगे। ठीक है। अच्छा, इतना आपको समझ आ गया। वा उलाइका, अब ये खबर बन गई है, यहां से लेके ना यहां तक खबर बनी है इन्ना की, ये इन्ना की खबर है।
इन्ना का इसम मौसूल सिला, इन्ना की खबर जुमला की शक्ल में, लन तुगनी अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिन अल्लाहि शैअन। ये शैअन मंसूब इसम होके माफूल बना था। अ, तो फिर ये पूरा जो है ये बन गया इन्ना की खबर। तो इन्ना अपने इसम और अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया हो गया मुकम्मल। वा हरफ अतफ, उलाइका यही वो लोग हैं, अस्हाबुन नारी जो आग वाले हैं। उलाइका मुब्तदा, अस्हाबुन नारी इसकी खबर। मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। ठीक है। हम वो सब, अगेन मुब्तदा, फीहा इसमें मुरक्कब जारी मुतालिक, खालिदूना फेल मरफू इसम, खालिदूना मरफू इसम आ गया हमारे पास। तो ये इसकी खबर बन गई। तो मुब्तदा अपने इसम और अपने खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया हो गया। ये जुमला इस्मिया जो है ना, हम फीहा खालिदून, ये पीछे वाले जुमला इस्मिया की हाल भी बन के आ रहा है। आप देखें यही लोग आग वाले हैं, और आग वालों का हाल कैसा है कि अब वो इसमें हमेशा रहेंगे। तो इसको इसका हाल लिख लीजिए। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां पे पहले बताया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को भी उसकी नेकी से महरूम नहीं करते। अल्लाह ताला बाखबर हैं, अल्लाह ताला दिलों के हाल जानते हैं कि कौन इंसान किस तरीके से नेकी का काम कर रहा है और उसकी क्या नियत है, उसके दिल का हाल क्या है। अहले किताब में से भी जिन्होंने सच्चे दिल से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन किया, अल्लाह की आयत के ऊपर यकीन किया, उनको माना, उनको पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज्जत को वहदहु ला शरीक समझ के सजदा किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी कैफियत को यहाँ बयान किया और उनको क्या कहा, सालिहीन में से कहा। तो फिर इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी की भी नेकी को जाया नहीं किया करते। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जिन लोगों ने कुफर कर दिया ना, तो कुफर और शिर्क ये तमाम नेकियों को बर्बाद कर देता है। ये उन अहले किताब का जिक्र है जो ऊपर वाले ग्रोह के बरअक्स हैं, वो अपने कुफर पे अड़े रहे। उनकी बाबत फरमाया गया है कि जिस माल और औलाद की मोहब्बत ने इनको अल्लाह से बेपरवाह कर दिया, वो माल, वो औलाद उन्हें अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकेगी। ये लोग दोजख में पड़े रहेंगे और फिर कभी नहीं निकल सकेंगे। ये अहले किताब के उन लोगों के लिए खास आयत है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो ईमान ले आया और अल्लाह के ऊपर ईमान ले आया, वो वो जन्नत में जाएगा, वो लाजमी जन्नत में जाएगा। ये वो लोग हैं जो अल्लाह अहले किताब में से हैं और उन्होंने अपने माल और अपनी औलादों को अपनी दौलत बना लिया और अल्लाह के मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया। कुफर और शिर्क में ऐसे अड़ गए कि उनको हदायत का रास्ता सामने होते हुए भी नजर नहीं आया। तो फिर वो हमेशा दोजख में रहेंगे। ये उनका ठिकाना है, अबदी ठिकाना है। ये तो आयत हो गई अहले किताब के लिए। जब हम अल्लाह की किसी भी आयत को पढ़ते हैं ना, तो लाजमी तौर पर हमारे लिए कोई ना कोई इसमें मैसेज होता है, हमारे लिए कोई ना कोई पैगाम होता है ना उसमें। ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत भेजी हैं, हमारे लिए कुछ नहीं भेजा उसमें, उस वक्त के लोगों की बात हमें बता दी और हम अपने दिल से अज्यूम कर लेते हैं सजा भी उन्हें मिलेगी, जहन्नुम में भी वो जाएंगे। हमारे लिए तो ये आयत ही नहीं। असल में कुरान की एक एक आयत, छोटी से छोटी आयत जो है ना,